Hello everyone. Today we are going to do third chapter of class 12, Deep Water. This story has been written by William Douglas. He was born in 1898 and he died in 1980. Let's start the story both in English and in Hindi. William O. Douglas recalls a mid-adventure of childhood. It had happened when he was 10 or 11 years old. He had decided to learn to swim. There was a pool at the YMCA in Yakima, which was safe. It was only 2 or 3 feet deep at the shallow end and 9 feet deep at the other. The drop was gradual. He got a pair of water wings and went to the pool. He hated to walk naked into the water and show his very thin legs. विलियम और डगलस बचपन की एक दुर्घटना जो उनका एक एक्सीडेंट है, एक याद है, वो उसको बताते हैं। जब वो 10 या 11 वर्ष के थे, उन्होंने सोचा कि चलो मैं स्विमिंग सीखता हूँ, तैरना सीखता हूँ। उन्होंने निश्चय किया याकीमा में वाईएमसीए एक तालाब था जो एक सेफ स्विमिंग पूल था, सुरक्षित था। और उसका जो एक सिरा था वो 3 फुट गहरा था और दूसरा जो सिरा था वो 9 फुट गहरा था। उसने पानी में तैरने के पंखों की एक जोड़ी ली जिसे यू कैन हेल्प टू स्विम, और वह तालाब में चला गया। वह पानी में नंगे चलने से तथा अपने अत्यंत जो उसकी टांगे थी उसे बहुत अजीब सा लगता था कि अपनी अपनी टांगे जो है पतली पतली दिखाना और पूरा नेकेड होके पानी में swim करना. The author had developed an aversion to the water when he was 3 or 4. His father had taken him to the beach in California. They stood together on the surf. The waves knocked him down and swept over him. He was buried under water. His breath was gone. He was frightened. His father laughed. But the overpowering force of the wave filled terror in the young author's heart. जब लेखक 3 या 4 वर्ष का था तो उसे पानी के जो प्रति है वो बहुत अरुचि यानी कि घृणा हो गई थी। क्यों हो गई थी? उसके पिता उसे कैलिफोर्निया के एक सी में लेके जाते थे, किनारे पे ले गए थे, और वो समुद्री झाग पर इकट्ठे खड़े हुए थे। और जब बड़ी बड़ी लहरें आई, वेव्स आई पानी की, और उन्होंने उसको नीचे गिरा दिया और उसके ऊपर से वो बहने लगी। वे पानी में दफन हो गया और उसकी सांसें जो थी वो चली गई। तो वो बहुत डर गया था। उसके पिता हंसे, किंतु लहरों की अत्यधिक शक्ति जो थी उसके हृदय में एक थी, उसको फियर हो गया कि कहीं मैं पानी में अब जाऊंगा तो वो मुझे डुबो के या बहा के ले जाएंगे अपने साथ। Unpleasant memories were revived when he went to the YMCA pool at the first time. Childish fear was still, but soon he gathered confidence. He watched other boys paddling on water with their water wings. He tried to learn by imitating them. He did this 2 or 3 times on the different days. He was just beginning to feel comfortable in the water when the misadventure happened. This is on the screen. You can see the Yakima River map. This is the map. All right. Now we can continue our story. तो जब वो पहली बार YMCA के तालाब में गए थे तो उनकी जो भी मेमोरीज थी उन्हें याद आने लगी कि बचपन में वो भय, उनके अंदर जो डर हो गया था मन के अंदर पानी से, और उन्होंने फिर एक विश्वास एकत्रित किया कि चलो लेट्स स्टार्ट अगेन। और उन्होंने जो दूसरे लड़कों को वो देखते थे तैरने के लिए पंखों से जो पानी को धकेलते हुए देखा उन्होंने लड़कों को, तो उनकी नकल करके वो सीखने का प्रयास करने लगी। जैसे जैसे वो बॉयज कर रहे थे तो उन्होंने सोचा चलो मैं भी वैसे वैसे करता हूँ। उन्होंने 2-3 बार भी ऐसा किया और उसने जल में
आरामदायक महसूस हुआ और करना भी आरंभ कर दिया था कि एक दुर्घटना हो गई। अब वो दुर्घटना क्या थी? When he went to the pool, there was no one else. So he sat on the side of the pool to wait for others. Shortly afterwards, a big boy, a boxer, came. He was probably 18 years old and had beautiful muscle on his arm and legs. He called the otter Skinny and asked how he would like to plunge in water. The boxer boy picked Douglas and threw him into the deep end. He struck water in the sitting position. He swallowed water and once went to the bottom. He was frightened, but did not lose his wits. He made a plan. He would make a big jump when his feet hit the bottom. He would come to the surface like a cock, lie flat on it, and then paddle to the edge of the pool. तो जब वो तालाब पे गए तो वहां कोई भी नहीं था। तो उन्होंने दूसरों की इंतजार किया कि शायद कोई आ जाए। तो वहां पास में ही वो बैठ गए तालाब के। और थोड़ी देर में वहां पे एक बहुत भारी भरकम लड़का आया जो एक बॉक्सर था, एक मुक्केबाज था। और लगभग उसकी जो एज थी वो 18 वर्ष का रहा होगा। और उसके हाथ पैरों की जो सुंदर मसल्स थी, मांसपेशियां थी, बहुत फौलादी थी। तो उसने जो आके लेखक को कहा कि पतलू कह के पुकारा उसे, और उसे वहीं पानी में डुबकी लगाई। उस मुक्केबाज लड़के ने डगलस को उठाया तथा गहरे सिरे से पानी में फेंक दिया, और वो बैठने ही की स्थिति में ही पानी से जा टकराया। उसने पानी निगल लिया, और जब वो नीचे पहुंचा, नीचे की तल पर चला गया, तो वो बहुत फ्राइटेंड, बहुत ज्यादा डर गया था। और उसने सोचने विचारने की शक्ति नहीं गवाई। वो सोचने लगा, उसने एक प्लान बनाया नीचे जाके। और उससे जब पैरों को नीचे बॉटम से टकराया और एक लंबी सी छलांग लगाई, हिट करके, जैसे एक कॉक को आप करते हो डार्ट को। और वैसे जैसे ही लगाई वो तल पर आ गया, यानी कि ऊपर की सरफेस पे आ गया। इस पर सीधा लेटेगा और पानी को धकेलता हुआ तालाब के सिरे तक पहुंच गया। Those 9 feet appeared more than 90. Before he touched bottom, his lungs were ready to burst. When his feet hit the bottom, he made a great jump upward, but he failed to reach the surface at once. He came up slowly. His eyes and nose came out of water, but not his mouth. He moved around his legs on the surface of the water. He swallowed water and choked. He tried to bring his legs up, but they hung as dead weights. He again went down to the bottom of the pool. He was shrinking under water because terror had seized him. He was paralyzed underwater, but his heart and the pounding in head told him that he was still alive. When he hit the bottom, he jumped with the full might. The jump made no difference. The water was still around him. His arms and legs wouldn't move. He trembled with fear. He tried to call for help, to call mother, but nothing happened. Then he rose up. His eyes and nose were almost out of water. He sucked for air and got water. He stared, going down a third time. वो 9 फुट लंबा, 9 फुट से भी अधिक था। और जब उसने अपने तली को छूने की कोशिश करी, और तो उसके जो लंग्स है वो फटने को तैयार थे, यानी कि बहुत घबराया हुआ था। और जब उसने बॉटम से हिट करके ऊपर छलांग लगाई थी, तो वो ऊपरी सतह पे तो पहुंच गया था, लेकिन बहुत धीरे धीरे आ रहा था। उसकी जो आंखें और नाक थी वही बाहर तक आए थे, लेकिन मुंह नहीं आया था। तो उसने पानी के तल पे जब पहुंचा तो उसने अपनी टांगे इधर उधर घुमाई, और थोड़ा सा पानी वो निगल भी गया। और उसका जो
गला था पे एकदम पानी गटकते हो तो रुक जाता है, तो स्टक हो गया, चौक हो गया। और उसने अपनी टांगे जो थी ऊपर लाने की बहुत ज्यादा कोशिश करी, किंतु वह भार की भांति, यानी कि उसको लगा जैसे बहुत ज्यादा वेट लटका हुआ है, तो वो लटकी रही। वह फिर तालाब की बॉटम की ओर चला गया। वह पानी के नीचे चीख रहा था, और क्योंकि उसे भय बहुत फ्राइटन था, भय ने जकड़ रखा था। और वह पानी के नीचे जो था बिल्कुल शक्तिहीन, जैसे कुछ प्रयास नहीं कर पा रहा था, जैसे पैरालाइज कहते हैं जब आपके हाथ पैर चलने बंद हो जाते हैं, तो वैसे महसूस कर रहा था। किंतु उसके जो हार्ट था वो बहुत धड़क रहा था, लेकिन जो दिमाग था अभी भी जीवित था, अभी भी उसके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा था। देन अगेन वो जब बॉटम से टकराया, तो उसने पूरी शक्ति से ऊपर की तरफ वो उछला, और इस उछाल से भी कोई अंतर नहीं आया। पानी अब उसके फिर भी चारों ओर था, हाथ पैर हिलते भी नहीं थे, और वो अब फिर डर गया पहले से ज्यादा। और उसने सहायता के लिए पुकारने का भी प्रयास किया, माँ को पुकारने का, किंतु कुछ भी नहीं हुआ। फिर वह ऊपर उठा। उसकी आंखें और जो नाक थी लगभग पानी की से ऊपर ही थी। उसने सांस लेने की कोशिश की, किंतु उसे पानी ही मिला। वह तीसरी बार नीचे जाने लगा। Then all effort ended and he relaxed. A blackness swept over his brain and wiped out terror. There was no more panic. He felt drowsy and went to sleep. He gave all his attempts. He forgot everything. When he came to his senses, he found himself lying on his stomach beside the pool, vomiting. The boy who had thrown him in said, I was only fooling. Someone said that the kid had nearly died. Then they took him to the locker room. He walked home after several hours. He was weak and trembling. He shook and cried when he lay on the bed. He couldn't eat that night. For days, a haunting fear was in his heart. He never went back to the pool. He feared water and avoided it whenever he could. जब वो पानी के नीचे चीख रहा था, और जब वो नीचे तीसरी बार जाने लगा, तो उसके जितने भी वो कोशिश कर रहा था सब समाप्त हो गए थे। वो बहुत शांत हो गया, और जो था उसका फियर अपने दिमाग में भी चढ़ने लगा, उसका डर बहुत ज्यादा बढ़ गया था। और जैसे ही वो अचानक भय लगता था, और उसने कहा कि अब तो मैं सोना चाहता हूँ, और उसने सारे प्रयास जो थे, जो कोशिश कर रहा था, वो छोड़ दिए, और वह सब कुछ भूल गया। और जब उसे ऐसे लगा जैसे वो बेहोश सा हो गया है, तो जब उसे होश आया, उसने क्या महसूस करा? उसने महसूस करा कि उसकी, जब वो कॉन्शियस हुआ, तो उसको स्वयं को वो उल्टियां कर रहा था। जब वो उसे हल्का सा होश आया, और वो पेट के बल लेटा हुआ था उसी तालाब के पास, और जिस लड़के ने उसे पानी के अंदर फेंका था, और वो बोल रहा था और उसके साथ सिर्फ केवल मजाक कर रहा है। उसने कहा कि मैं तो आपके साथ सिर्फ मजाक कर रहा था। किसी अन्य लड़के ने कहा कि ये तो लड़का मर ही गया है, और फिर उसे लॉकर वाले कमरे में ले गए बस बदलने के लिए। उसके जो क्लोथ थे गीले थे, तो उन्होंने कहा कि चलो इसके क्लोथ बदल देते हैं, कपड़े बदल देते हैं। और कई घंटे बीत गए, और वो जब आफ्टर, जब व्हेन ही वाज रिलैक्स, तो वो पैदल अपने घर पहुंचा। बहुत ही कमजोर महसूस कर रहा था, और बहुत शेक कर रहा था, कांप रहा था। और जब वो अपने बिस्तर पे लेटा, तो वो हिलने और चीखने भी लगा। और उस रात उसने भोजन भी नहीं किया। कुछ दिन बाद जब उसका जो हार्ट था डर के मारे धड़क ही रहा था तेज, तो और वो उस तालाब में वापस कभी नहीं गया। और उसको जो वाटर सा वाटर से डर लगने लग गया बहुत ज्यादा, और जहां तक वो होता था वो उससे दूर भागता था पूल से, कि भाई मैं आप पानी के पास नहीं जाऊंगा। उसका डर बहुत ज्यादा बढ़ गया था।
A few years later, he came to know the water was cascades. He wanted to get into them. Whenever he did so, the terror had seized him in the pool return. His legs would become paralyzed, and icy horror would grab his heart. This handicap remained with him even as time passed. Whenever he went, the haunting fear of water followed him. It ruined his fishing trips. It deprived him the joy of canoeing, boating, and swimming. He used every method he knew to overcome his fear. Finally, he decided to get an instructor and learn to swim. He went to pool and practiced 5 days a week, an hour each day. The instructor put a belt around him. A rope attached to the belt went through a pulley and on an overhead cable. He held on the end of the rope. They went on this way for many weeks. On each trip across the pool, a bit of panic seized him. Each time the instructor relaxed his hold on the rope, and Arthur went under the water. Some of the old terror returned, and his leg froze. It was 3 months before the tension began to slack. Then the instructor taught him to put his face under water and exhale, and to raise his nose and inhale. He repeated the exercise hundreds of times very slowly. He shed some of the old panic as his head went under the water. अब क्या हुआ? जब वो डर तो उसको था ही पानी से, तो अपने उसने कहा कि मैं अब ऐसे तो नहीं चलेगा। उसने कहा कि चलो मैं दोबारा से पानी में जाता हूँ, लेकिन पानी के विषय में जब उसे पूरी तरह से पता लगा और वो उसमें घुसना चाहता था, तो जैसे ही वो घुसता था उसे फिर डर लगने लगता था। उसकी जो टांगे थी वो चलती नहीं थी पानी के अंदर, और वो अपने हाथ को बहुत कस कर, हृदय को काफी कस के पकड़ लेता था, और समय बीतते बीतते लेकिन कमी उसके साथ वो बनी रही। और वो जहाँ पे भी जाता उसका जो ये डर था उसका पीछा करता रहता। अब वो मछली पकड़ने जब जाता था वो भी बर्बाद हो गया, और उसे बोटिंग करनी थी या स्विमिंग करनी थी, वो सारी चीजें जो उसे खुश रख सकती थी वो नहीं कर पाता था। अपने फियर पे वो जब वो काबू नहीं कर पाता था, तो उसने सोचा कि चलो अब मुझे ना किसी इंस्ट्रक्टर की जरूरत है जो मुझे सिखाए। तो मुझे तैरना सीखना चाहिए किसी और के थ्रू। तो वो तालाब पर गया और उसने कुछ भी जो है 5 दिन प्रति घंटा 1 घंटा अभ्यास करता था सीखने के लिए। और जो उसका जो गुरु था उसने उसे चारों ओर एक पेटी लगा दी थी, बेल्ट लगाई, और एक रस्सी से उसको ऊपर सिरे से बांध दिया, तार से जो होकर जाती थी। और वो रस्सी के सिरे को लेकर पकड़ लेता था। तो कितने ही हफ्ते ऐसे, कितने ही सप्ताह ऐसे बीतते चलते गए। तालाब में उसका रोज जाता था, और जाते ही उसको फिर फियर लगता था, डर लगता था। तो अब उसने जो रस्सी की जो अपनी पकड़ थी वो ढीली करता, तथा लेकर जो है उसे पानी के नीचे ले जाता। और उसका जो पुराना भय था वो धीरे धीरे आ जाता वापस, और उसकी जो टांगे थी वो सुन्न हो जाती थी। ये तनाव, ये जो ढीलापन था, होते होते 3 महीने बीत गए थे। फिर गुरु ने उसे पानी के अंदर जो चेहरा रखकर उसे कहा कि तुम सांस छोड़ो, बाहर निकालो, और नाक जब ऊपर करो उसे उठाना और सांस लेना, भीतर खींचना अपने सांस को। और उसने अभ्यास को सैकड़ों बार दोहराया। उसका सिर इसी तरह पानी के अंदर जाने से और उसका कुछ पुराना जो फियर था वो धीरे धीरे खत्म होता गया। तब जो इंस्ट्रक्टर था उसने तालाब की तरफ उसको पकड़ा और उसे कहा, टांगों से ठोकर लगवाई, हिट करवाई। और ये भी कई वीक तक चलता रहा। धीरे धीरे उसकी जो टांगे थी वो आराम महसूस करने लग गई, और इस प्रकार टुकड़े टुकड़े में उसने एक तैराक बना दिया, एक स्विमर बना दिया उसको कुछ ही टाइम में। और तब उसने प्रत्येक भाग में जो था
अपने हर तरह से लेवल में वो निपुण हो गया। अब उसे स्विमिंग आने लग गई। उसने अक्टूबर में अभ्यास करना प्रारंभ किया था और अप्रैल में जो गुरु था उसने बताया कि वो अब तैर सकता है। उसने लेखक को डाइव करना, गोता मारना और पूरे तालाब की लंबाई को तैरने को कहा। और उसने रेंगने वाले जो प्रहार थे वो भी प्रारंभ कर दिए थे। तो धीरे धीरे उसको स्विमिंग जो है आने लग गई थी। It was 3 months before the tension began to slide. Then the instructor taught him to put his face underwater and exhale, and to raise his nose and inhale. He repeated the exercise hundreds of times. Very slowly, he shed some of his old panic as he had went under the water. Then the instructor held him at the side of the pool and had him kick his leg. He did so for weeks. Gradually, his legs relaxed, thus, piece by piece, he built a swimmer. When he had perfected each piece, he put them together into an integrated whole. He had started practicing in October, and in April, the trainer told him that he could swim. He asked the author to dive off and swim the length of the pool. He began with the crawl stroke. When he swam alone in the pool, tiny remnants of the old terror would return, but now he could rebuke his terror. This went on till July. He was still not satisfied. So he went to the Lake Wentworth in Hampshire. Then he dived off a dock at Triggs Island, and he swam 2 miles across the lake to Stamp Act Island. He swam the crawl, the breaststroke, side stroke, and backstroke. The terror returned only once. When he was in the middle of the lake, he put his face under the straw and saw nothing but bottomless water. He asked terror what it could do to him, and it fled away. Some doubts still remained, so he went to the Titan to Conrad Meadows, up to the Conrad Trail to Meadow Glacier. He camped in High Meadow by the side of Warm Lake. Next morning, he dived into lake and swam across to the other shore and back. He shouted with joy, and Gilbert Peak returned to the echo. He had conquered his fear of water. The experience had a deeper meaning for him. Only those who have the terror and conquered it can appreciate it. In that there is a peace. There is terror only in the fear of death. Roosevelt knew it. He said, all we have to fear is fear itself. Douglas had experienced both the sensation of dying and the terror that fear of it can produce. The will to live somehow grew in intensity. At last, Douglas felt liberated. He was free to walk the trails and climb the peaks and to ignore, dismiss fear. जब वो तालाब में अकेला तैरता था और पुराने जो उसके फियर्स आते थे वो धीरे धीरे छोटे छोटे अंशों में वापस आते थे, लेकिन वो अपने भय को दबा लेता था। और ऐसा जो था वो जुलाई तक चलता रहा। वो थोड़ा रिलैक्स हो गया, सेटिस्फाई हो गया आंसर। वे न्यू हैम्पशायर में लेक वेंटवर्थ में गया। वहां उसने ट्रिक्स जो द्वीप था, आइलैंड था, उसको उसकी गोदी में एक गोता लगाया। वहां उसने डाइव लगाई और झील के पास जो स्टाम्प एक द्वीप था उसमें भी 2 मील वो तैर कर आया। और उसने रेंगने के प्रहार और छाती के प्रहार, पक्ष के प्रहार, पीठ के प्रहार से वो तैरा। हर तरीके से उसने तैरने की कोशिश करी जो जो उसके गुरु ने उसको सिखाए थे। और जो भय था, जो फियर था, वो एक ही बार लौटा। उसके बाद वो जब लेके बीच में पहुंच गया था, स्विम कर रहा था, तो उसने अपना सिर जो है पानी के नीचे किया
और उसको सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा था, उसके एंडलेस वाटर दिखाई दे रहा था, और उसके अलावा उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। उसका जो भय था, उसने उससे पूछा कि भी वह इसका क्या कर सकता है, तथा वो दूर भाग गया अपने आप से ही बात करके। तो कुछ संदेह अब भी शेष थे। वे टाइटन नदी के ऊपर को कॉनरेड, साराघा कॉनरेड पदमार्ग से ऊपर मीड हिमनीद तक पहुंचा, और उसने वाम लेक के पास जो ऊंची चरागांव के जो शिविर लगाए थे, उन्होंने वहां लगाए शिविर अपने। और जब नेक्स्ट डे मॉर्निंग हुआ तो उसने उस लेक में दोबारा से डाइव मारा और दूसरे तट तक पहुंचकर फिर वापस भी तैर कर आया। तो उसे बहुत खुशी हुई, तथा गिलबर्ट जो चोटी थी उसमें अपनी आवाज चीख चीख के बोली, मैंने अपने। अब वो वापस जैसे इको होता है, जब आप वैलीज में आप चिल्लाते हो तो आपकी आवाज वापस लौट कर आती है, तो वैसे ही उसके साथ हुआ। तो उसने अपने पानी से अपने भय की विजय प्राप्त कर ली थी। तो वो चिल्लाया था ऐसे। उसने अपना जो अनुभव था उसका एक गहरा अर्थ था, जो उसका जो डर था, लोग जिन्हें कठोर भय को जानना था, उसे उसने हटाया था, अपने दर्द फियर को बिल्कुल हटा दिया था अपने। अ, जो उसे समझ सकते थे। तो मृत्यु में जो शांति है, मृत्यु के भय में अत्यधिक भय है, तो वो ये मानता था। रूजवेल्ट को ये ज्ञात था। उसने कहा था कि जिससे हमें डरना है वह तो डर स्वयं ही है। तो डगलस ने भी मरने की अनुभूति की, और जो भय वह उत्पन्न कर सकता था उन दोनों का ही उसने अनुभव किया था, एक्सपीरियंस किया था। जीवित रहने की इच्छा जो किसी भी प्रकार से उसके अंदर विकसित हो गई थी कि मुझे अब जीना है। तो अंत में डगलस ने स्वतंत्र मुक्त महसूस किया, अपने आप को फ्री महसूस करा, और पर्वतों के पथ पर चलने के लिए जो उसकी चोटियां थी उस पर चढ़ने का जो एवं जो भय था अनदेखा करने से के लिए वो स्वतंत्र था कि अब मुझे कोई डर नहीं लगता। तो उसने काफी मेहनत करी। पहले वो पानी से डरता था, देन उसने धीरे धीरे प्रयास करा, देन ही रियलाइज कि मुझे एक इंस्ट्रक्टर चाहिए। तो इंस्ट्रक्टर लिया, उसने धीरे धीरे सारे पैतरे उसने सीखे कि कैसे डाइव करना है, कैसे उठना है, कैसे हिट करना है। और काफी एक्सपीरियंस के बाद लेक्स पे और इधर तटों में, तालाब में, आइलैंड में घूम घूम के उसने डाइव करी, स्विम करी, और उसका एक्सपीरियंस जो था, स्विमिंग का जो एक्सपीरियंस था वो बहुत पक्का हो गया, और उसने अपनी जो फियर था उसको ओवरकम कर लिया। So this was the story. Hope you like my story. If you have any questions, students, please comment on the comment box.